Everybody spiritual geometry is different. पहला बात है कि मेटीरियल ज्योमेट्री और स्पिरिचुअल ज्योमेट्री जमता ही नहीं. बिटवीन टू मेटीरियल ज्योमेट्री आल्सो जमता है. बिटवीन टू स्पिरिचुअल ज्योमेट्री आल्सो भी जमता है. स्पिरिचुअल ज्योमेट्री होना चाहिए तभी तो जमे. वो सबकी बस की बात नहीं. आइडेंटिकल ज्योमेट्री होना. अरे समझौता कर लेना बस सबके साथ शांति में रहना. आप एंजॉय नहीं कर सकते परंतु शांति में रहना चाहिए. झेल ना. देखो अभी तक मैं यूज किया अभी झेल दो. टू टर्म्स आर देयर. मेटीरियल ज्योमेट्री स्पिरिचुअल ज्योमेट्री टोटली ऑपोजिट. And within material geometry there are many grades. And within spiritual geometry there are many grades. एक ग्रेड को दूसरा ग्रेड तो जमता नहीं. फिर जो पूजा पाठ करते हैं मंदिर जाते हैं नाजर पढ़ते हैं मुझे मरीज नहीं जमता है तो मैं क्या करूं उनको छोड़ दूं. तो ऐसा ही हुआ तो सबको छोड़ दिया मैं. There are various types of material geometry, various types of spiritual geometry also. And you want a spiritual geometry now. Only that type of spiritual geometry जमता आपको जो आपका spiritual geometry है. वैसे ही रहना चाहिए जिनको जिंदगी भर आप जाएंगे तो भी क्या आपने रहना ही है. तो मैं एक ही नहीं रह गया. मैं तो गया मैंने कैसे बोले मैंने सेफ ज्योमेट्री. अरे हजार होते फिर एक मोती मिलता आपको. एक मोती के लिए आपको जाना ही पड़ेगा हजार के पास से. तो एक मोती के लिए हजारों बेवकूफ के पास तो जाना ही पड़ेगा. तो वो एक मोती भी नहीं मिलेगी नहीं तो फिर एक मोती बहुत कीमती होती है. एक मोती वो हजारों पत्थरों से आप उन्हीं के जन्म दिए. ये आपका फर्ज बनती है उनको देखने का. और ये के लिए आपको गेट को जाना. मैं ये के लिए 400 किलोमीटर जाता था. ये के लिए मैं अंडमान जाता था. हैदराबाद से मिलता था मुझे. फिर मैं अंडमान जाऊं फिर वहां वापस आऊं. वो एक आदमी के लिए. बाकी पूरे जिक्र करते थे मुझे. चलो ये स्वामी जी आइए बोल. तो होता ही है बाबा दुनिया के रिवाज तो सब. मोदी को कैसे बातें रखेंगे आप. आप उनके पास जाएंगे अवश्य जाएंगे. एक के लिए अपने दांत लगाएंगे. सौ प्रवाह नहीं करेंगे आप. जो आपको अपमान करेंगे जो आपका सम्मान नहीं देंगे 100 में से 99 बस एक के लिए आप जाएंगे क्योंकि वो मास्टर बनने वाला है. तो उसकी आवश्यकता है उनके लिए. आप अपने जानबाजी भी रखकर आप उनके पास जाएंगे. आप meditation is our real home. Our physical home is not our home. Our parents are not our home. Our children are not our home. Our spouses are not our home. Our meditation is our home. You put it very for the Swami. To go into meditation, to find meditation means galaxy. We have discovered our own home, where we are always happy. Meditation is our real home. So, when you are out of your home,
You are homeless. Homelessness is a hopeless situation. Hope is the hope. And what is the hope? Hope is not a building. Home is a psychological environment. And that home is only meditation, anapanasati. Observing your breathing while into your home. Your home is your refuge. From your home, you must go into outside world and come to your home. Home is a very beautiful concept. Meditation will help us. We are in our own home. Our home is where we are born, we are brought up, and we are born in meditation. We are brought in meditation, and we die in meditation. We die in our own home. We don't die in hospital. We should die in our home. We are born in our home. We are brought up in our home. We live in our home with other family members. So other meditators are also living in the same home while they meditate. Abhidan is my family because we are both living in the same home. We are family members living in the same home. क्या बात है? Yeah. You know, homecoming birds. They go migrate, then homecoming birds. Even if they are 3,000 kilometers away, the birds, they come back to their home, their natural home. So, migrating birds and homing birds. That's a great phenomenon in bird kingdom. So, homecoming is very, very important for all humanity, not only for birds. But birds know how to come back to their homes. But human beings don't know. When they come into meditation, they know, yes, we are back in the home. The migratory birds have come to their natural home, natural habitat. Natural habitat for every human being is meditation. So whenever they come into meditation, they are very, very happy. Oh, I am back home with my own happiness. You are not to breathe in, you are not to breathe out. See, there are two things. Karma yoga and Kriya yoga. Karma is whatever you do with your own volition. Kriya is something that is happening without your volition. See, you raise your hand like this. Raise now and bring it down. Who is doing it? You are doing it. That is our karma. Okay. Now, when you are talking to me like this, who is doing the breathing? Are you doing the breathing? The body is doing the breathing. You are involved in putting a question to me, and you are involved in listening to answer from me. During that period, the breathing is happening by the body. That is called a Kriya. Kriya is happening. Now, Anapanasati is Kriya Yoga, not Karma Yoga. When you are breathing, that is Karma Yoga. You are doing something. So, in Anapanasati is not Karma Yoga, it is Kriya Yoga. You are observing the Kriya that happened by itself. Kriya Yoga is what you are supposed to do. 10:45 a.m. With the breathing. Karma Yoga with your karmas in your day-to-day work, not with your breathing. Here is point. Here is point. So, what has become clear is, so, on one hand. On the other hand,
You know, the geometry beyond your knowledge, beyond your awareness. उससे बढ़ा देगा मीटिंग न्यूज मीटिंग रेडियो न्यूज एनर्जी ज्ञान तो आगे so that is beyond things necessary in the data course क्या है वो तो लोग स्वामी जी तो कुछ के बारे में जानता हूँ तो मेरा कुछ बताइए घुमाने वाला बॉडी एक साथ बॉडी अभी क्या कुछ किसी मैंने आइए उसमें इतना भी इससे जिंदगी के मोड़ जहाँ भी बन चिपका जा रहा लीडर बन your fingers you know, okay. ये परम श्लोक भगवत so they are known for their quite obviously not is those words so they are those words ada kemarin I go take one for yes यानी निकल हृदय ये आपकी ठीक हूँ आपके जैसे महापुरुष के लिए आप तो आपके जैसे ऐसा इस मेरा ये सब नीच निकल है speak about
चार और अब आएंगे दो कदम आगे कोई बात तो भलाई नहीं चाहिए, तब तो भलाई चाहिए। और भलाई कहाँ मिलेगी? किस बाजार में सौदा होगी? पहले भलाई की ज्ञान की तो बाजार सभी में आना ही है और आएंगे भी, और आकर जबरदस्ती के उनका साधना भी करेंगे। भलाई किसी को भी बुराई नहीं। हाँ, हम तो और चाहते अपना तो नहीं चाहते, अपना भलाई तो चाहते हैं। अपने भलाई कहाँ कैसे होगी? अपने भलाई केवल ध्यान किया सो हर बंदा को जाने तो आना ही है और आएंगे भी, ये तो निश्चित है। अगर ध्यान में भलाई है तो सभी को जन्म आना ही है और आएंगे भी, सभी को भलाई तो किसी को बुराई तो नहीं चाहिए। सभी लोग भलाई में आए, मैं भी आ जाऊंगा, मेरे आजू बाजू अड़ोस सभी लोग आ जाएंगे, पूरा दुनिया आ जाएगी भलाई में, क्योंकि भलाई है वो। माच मंच करना बुराई है, ध्यान करना भलाई है। बुरा करना छोड़ दीजिए और भला करना अपनाइए। माच मंच छोड़ो और ध्यान को अपनाइए, बस यही बात है PSSM की। एक ही बुराई एक ही भलाई है, माच मंच करना ही बुराई और ध्यान अपनाना ही भलाई है, इतना ही बात है। एक ही बुराई है, एक ही एक भलाई है, यही PSSM सही है संदेशा। बुराई को अपनाएंगे तो बुराई बन जाएंगे, भलाई को अपनाएंगे तो भलाई बन जाएगा। वो चुनते हैं वही बनते हैं, अपनी चुनौती है, भलाई या बुराई, मर्जी आपकी, चुनौती आपकी। और उनको भी क्या बताएंगे आप? बुराई बताएंगे या भलाई बताएंगे? क्या बताएंगे आप? जब मूर्ख बन गए तो क्या बताएंगे आप? भलाई या भलाई? भलाई। मूर्ख जब करते तो भलाई नहीं करना चाहिए। अरे बाबा माच मात मत खाइए, ध्यान को अपना ही बताइए नहीं बात। हर एक इंसान को इसी में है, माच मात और ज्ञान को अपने ये भी भलाई। बुराई है माच मांस को खाना और ज्ञान को छोड़ना, ये बुराई है। ज्ञान करते ही ज्ञान को छोड़ देते गजब के लोग हैं, दिन की 24 घंटे ज्ञान करते ही नहीं, ज्ञान को नाम भी नहीं लेते, तो उद्धार कैसे? और दिन भर माच मांस करते रहते हैं, ज्ञान का नाम ही नहीं।
बुराई नहीं, बुराई, 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 बुराई नहीं। और शिकायत कर देते हैं, मुझसे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपकी कदर है वैसे ही आपके फल मिल जाते हैं। तो भलाई की बात है, मांस मांस छोड़ो और ज्ञान को अपनाइए, आनापान को अपनाइए, यही है भलाई। अरे बाबा, हर एक पंडित के द्वारा ध्यान सबको मिलना चाहिए। ध्यान ही पांडित्य है। ध्यान के अलावा दूसरा कोई पांडित्य तो है ही नहीं। हर एक पंडित श्री कृष्ण के जैसे बनना चाहिए। श्री कृष्ण से अर्जुन से कही, आप ध्यानी बनिए, योगी बनिए। आपके पास बहुत चांस है बाबा, पंडित होते हुए सब लोग आपके पास आते हैं। क्यों आते हैं? मार्गदर्शन के लिए आते हैं। तो मार्गदर्शन देना ही चाहिए आपको। हर एक पंडित बुद्धा बनना है बाबा। तो आपकी पांडित्य का सार्थक नाम होगा। ध्यान ही पांडित्य है। ध्यान के अलावा दूसरा कुछ भी पांडित्य नहीं है। सांप्रदाय है, पांडित्य नहीं। और सदियों से सिलसिला चलते आ रहे, परंतु वो संप्रदाय है पर पांडित्य नहीं है। ध्यान ही पांडित्य है एकमात्र। आप लाखों लोगों को ध्यान सिखाएंगे बाबा,